उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 mole. What is 1 mole? 1 mole. 1 mole of any substance. We have studied in SI units, mole is the SI unit of quantity of substance. So what is 1 mole? 1 mole की definition क्या है? It is the quantity of any given substance containing 6.022 into 10^23 constituent particles of that substance. It means यदि किसी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल है 6.022 into 10^23 पार्टिकल्स, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। एंड दिस वैल्यू 6.022 into 10^23, this value is given by a scientist Avogadro, and this is called Avogadro's number. So what is the value of Avogadro's number? 6.022 into 10^23. Now next term is gram atomic mass of any element. We have studied relative atomic mass of an element. Relative atomic mass of an element is how many times one atom of given element is heavier than 1/12 of the mass of one carbon-12 atom. Now what is gram atomic mass? Gram atomic mass होता क्या है? Whenever relative atomic mass of any element is expressed in grams. जिस समय किसी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, इट मींस जस्ट चेंज द यूनिट। AMU की बजाय ग्राम कर दें, वैल्यू सेम कर दें, वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ यूनिट चेंज होगा। AMU की बजाय ग्राम, देन दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, we know relative atomic mass of calcium is, we know the atomic mass of calcium is 40 AMU. So relative atomic mass is also 40 AMU. And whenever we say gram atomic mass of calcium, the value is same, 40 value same, सिर्फ होगा क्या, यहां AMU की बजाय ग्राम आ जाएगा। तो this is 40 gram of calcium, sorry 40 gram of calcium नहीं आएगा यहाँ, 40 gram. So what is the gram atomic mass of calcium? 40 gram. Gram atomic mass of sodium 23 gram. सिर्फ वैल्यू में वैल्यू सेम आई है, एटॉमिक मास के ऊपर सिर्फ यूनिट चेंज हुआ है, AMU की बजाय ग्राम। नेक्स्ट टर्म इज थर्ड टर्म, 1 gram atom of any element. 1 gram atom of any element. This is just like a collective noun. जैसे collective noun होते हैं, 1 dozen means 12 things, ठीक है, 1 rim means 24 things, sorry 500 things. So 1 gram atom है क्या हमारे पास? This term is applicable in case of element. So 1 gram atom of any element क्या होता है? It is equal to gram atomic mass of that element. So किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम जो है, इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम एटम को आप इसे अलग अलग नहीं मानेंगे कि 1 ग्राम एटम मींस किसी भी एटम का 1 ग्राम, ये नहीं चलेगा। 1 ग्राम एटम कलेक्टिव थिंग है। सो 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, in case we say 1 gram atom of magnesium, we know atomic mass of magnesium is 24 EMU.
Whenever we say gram atomic mass, तो AMU की जगह ग्राम आ जाएगा, तो 24 ग्राम of magnesium. So 1 gram atom of magnesium is 24 gram of magnesium. If we say 5 gram atom of magnesium, it is 5 times 24. So 5 to 24, that is 120 gram of magnesium. So this is 1 gram atom of any element. This gram atomic mass term and this 1 gram atom term, this is applicable in case of element. Now next term, gram molecular mass of any substance. So just equal to, just similar to gram atomic mass. So gram atomic mass क्या था? Whenever relative atomic mass of any element is expressed in grams, the same way से whenever relative molecular mass of any substance is expressed in grams. सेम वे से है हमारे पास, जैसे वहां पर हमारे पास था रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में यूनिट एएमयू, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो एएमयू हटा के ग्राम हो जाएगा। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट एएमयू था तो ग्राम एटॉमिक मास लिखा तो यूनिट एएमयू की जगह ग्राम। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने कैलकुलेट किया था रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, दैट इज इक्वल टू 98 एएमयू। And if I say gram molecular mass of H2SO4, तो वैल्यू सेम रहेगी 98, बट यूनिट क्या होगा एएमयू की जगह ग्राम। तो दिस इज 98 ग्राम। नेक्स्ट टर्म, जैसे आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास आई थी और ग्राम एटॉमिक मास से क्या आया था हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट। तो सेम वे से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से बना ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से नेक्स्ट टर्म बनी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। सो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, दिस इज आवर नेक्स्ट टर्म। व्हाट इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस? इट इज इक्वल टू, जैसे 1 ग्राम एटम किसके इक्विवेलेंट था ग्राम एटॉमिक मास के, तो सेम वैसे इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। सो ये किसी गिवन सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। फॉर एग्जांपल इफ आई से 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? H2SO4 के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट। और अभी आपने H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला हुआ कितना है 98 ग्राम। सो इट इज इक्वल टू 98 ग्राम ऑफ H2SO4। If I say 3 gram molecule of H2SO4, so 3 times of 98. So 3 into 98, that is 294 gram of H2SO4. So relative atomic mass, gram atomic mass and 1 gram atom, these terms are applicable in case of any element. Same way से relative molecular mass, gram molecular mass and 1 gram molecule, ये term substance के केस में applicable है and the substance can be compound or any gas. Next term, next term is molar mass of any substance. अब क्या है मोलर मास? नेम से इंडिकेट हो रहा है मोलर मास मीन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस। सो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। सो किसी गिवन सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है दैट इज कॉल्ड मोलर मास। अब इसकी वैल्यू जो है, दिस टर्म इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, एलिमेंट, कंपाउंड और गैस, एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास इन केस ऑफ एलिमेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ कंपाउंड और गैसेस। बट डिफरेंस क्या है? वैल्यू तो सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है? द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ऑलवेज ग्राम पर मोल। सो द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ऑलवेज ग्राम पर मोल। जैसा मैंने बताया कि एलिमेंट के केस में ये एटॉमिक मास की इक्विवेलेंट है
इक्वल वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू। और कंपाउंड या गैस के केस में ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है, बट वहां पर उन दोनों का यूनिट क्या है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, उन दोनों का यूनिट एमयू है। और यदि मोलर मास की बात करें तो यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखिएगा, we know the molecular mass of H2SO4, अभी हमने फाइंड आउट किया 98 AMU। इफ आई से मोलर मास ऑफ H2SO4, वैल्यू सेम रहेगी 98, बट यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल, तो 98 ग्राम पर मोल। सेम वे से एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 AMU। इफ आई से मोलर मास ऑफ कैल्शियम, तो वैल्यू सेम 40, बट यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। सो दिस इज मोलर मास। नेक्स्ट टर्म इज मोलर वॉल्यूम। अब जो ये मोलर वॉल्यूम टर्म है, दिस टर्म इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गैसेस। ना ये एलिमेंट्स में यूज होगी, ना ही कंपाउंड्स में, ये सिर्फ गैसेस में यूज होगी। अब क्या होता है मोलर वॉल्यूम, नेम्स इंडिकेट है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। सो इट इज इक्वल टू volume occupied by 1 mole of any gas at NTP. NTP क्या है? This is the normal temperature and pressure, and its value is 0 degree Celsius temperature and 1 atmosphere pressure. NTP क्या है हमारे पास? Normal temperature and pressure। वैल्यू क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट मींस 273 केल्विन, and 1 atmosphere pressure. So at NTP कंडीशन पे 1 मोल ऑफ एनी गैस है, उसके पार्टिकल्स जितना या उसके मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम? सो ध्यान दीजिएगा, molar volume of any gas, its value is fixed, and its value is 22.4 liter or 22.4 decimeter cube, because 1 liter is equal to 1 decimeter cube। 1 liter में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 liter में 1000 ml है, तो 22400 milliliter of that gas at NTP। सो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है। फॉर एनी केस इट इज 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए हमने इस 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है 22400 सेंटीमीटर क्यूब। और हम सेम वे से जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, तो यहाँ पर इसे 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 22400 मिलीलीटर, और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट है, इसलिए ये दोनों वैल्यू सेम है। सो मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 22400 सेंटीमीटर क्यूब और 22400 milliliter of that gas at NTP, and NTP क्या है? 0 degree Celsius temperature and 1 atmosphere pressure, and this is called normal temperature and pressure. And these all are the some basic terms related to mole concept, and this is all about our today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.